Good evening, students. Welcome to Raj Malhotra IAS YouTube channel. Today's session is going to be comparatively interesting one. In this session, we are going to go through a tweet which went viral some 6 months back. In this tweet, a person named Chandan Roy shared his experience of going to a pizza shop to buy some pizza and how this experience ends up in solving a maths problem. So first of all, we will go through that situation. We will read the tweet first. So this viral tweet is of 30th of June this year. In his tweet, the person is saying that I ordered a 9-inch pizza and after a while the waiter brought two 5-inch pizzas and said that the 9-inch pizza is not available and he was giving me two 5-inch pizzas instead and that I am getting 1 inch more for free. So I requested the waiter to call the owner. So in his first tweet out of the 3 tweets, he said that I ordered a 9-inch pizza. This 9 inch is basically the diameter of the pizza. I ordered the 9-inch pizza, but because of its unavailability in the kitchen, the waiter assumed that if I gave him the two 5-inch pizza, two 5-inch pizzas will add up to 10. So which is basically 1 inch more than the actual size which the customer has ordered. So waiter gave him two 5-inch pizzas, assuming that it is 1 inch more for free. The person said that I requested the waiter to call the owner. So owner को बुलाने के बाद हुआ क्या? I gave him the mathematical formula to calculate the area of a circle. So उस person ने circle का area निकालने का mathematical formula दिया, which is pi r square, लिखा भी हुआ है. उसमें pi की value is 3.14. हम अपने मतलब competition exams, चाहे CSET के एग्जाम है, चाहे कोई भी state government, central government के एग्जाम्स है, उनमें हम pi की value सिर्फ 22/7 यूज करते हैं. इसे इग्नोर कीजिए एक बार. Circle का area is pi r square where pi is equal to this. R is the radius of the circle. So a 9-inch circle area. Here 9 inches is the diameter of pizza which is of basically circular shape. So if diameter is 9 centimeter or 9 basically inches, so its radius will be 9/2, that is 4.5. So he calculated the area of actual pizza which he ordered. That area of 9 centimeter circle will be 63 point something square inches, while a 5-inch circle area will be 19.63 only. He used the formula of pi r square. उसने pi की वैल्यू 3.14 यूज की, हम 22/7 यूज कर सकते हैं, हम pi को pi ही पुट कर सकते हैं because of it being the constant value. R की वैल्यू उसने एक्चुअल जो पिज्जा ऑर्डर किया that was of 9 सेंटीमीटर और 9 इंचेस. जो रेडियस 9 है उसने रेडियस मतलब डायमीटर 9 है तो उसने रेडियस 9/2 यूज किया, और जो वेटर ने लाके पकड़ा दिया that was of 5-inch डायमीटर जिसका रेडियस will be 5/2. So the two 5-inch circle areas add up to 39.26 square inches. उसने एक 5-inch सर्कल का एरिया निकाला 19.63. दिस वे दो ऐसे सर्कल्स, उनका एरिया 39.26 बन जाएगा. एंड आई सेड दैट, वो ट्वीट कर रहा है, आई सेड दैट इवन इफ ही गेव 3 pizzas of 5-inch size, I would still be at loss. How can you say you are giving me an extra inch for free? जो पहले वेटर ने क्लेम किया था that the person is getting 1 inch more for free. So he is saying that how can you say that you are giving me an extra inch for free? The owner was speechless. He finally gave me 4 pizzas and he is tweeting that take maths seriously. So ये सारा जो सिनेरियो बना जिसमें आखिर में उन्होंने पिज्जा का मतलब सर्कल का एरिया निकाल के प्रूव किया कि मैं 9 इंच का पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूं, ठीक है आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपका वेटर मुझे 5 इंचेस के 2 पिज्जास दे रहा है, ये सोच करके 5 इंचेस के 2 पिज्जास विल बी 10 इंचेस विच इज 1 मोर देन द एक्चुअल साइज विच आई हैव ऑर्डर्ड. बट ये गलत है. क्यों गलत है? उसने मैथमेटिकली प्रूव किया. हम उस प्रूव को समझेंगे विद दिस एग्जांपल. दिस इज अ पिज्जा ऑफ डायमीटर 9 इंचेस विच ही एक्चुअली ऑर्डर्ड. सो जब हम पिज्जा खा रहे हैं तो हम पिज्जा का 9 सेंटीमीटर इज द 9 इंचेस और 9 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द पिज्जा. लेकिन हम पिज्जा का कौन सा पोर्शन खा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पिज्जा इज ऑफ सर्कुलर शेप, पिज्जा सर्कल की शेप का होता है. हम पिज्जा का कौन सा पोर्शन खा रहे हैं? हम बच्चे पिज्जा का खा रहे हैं सारा एरिया का पोर्शन. पिज्जा जो हम खा रहे होते हैं वो पिज्जा जो सर्कल की शेप का होता है, हम उसका पूरा एरिया खा रहे होते हैं. तो बेसिकली विच आई एम गेटिंग इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एंड सर्कल इसलिए बिकॉज पिज्जा सर्कल की शेप का हो रहा है, एंड दिस इज द रीजन कि उसने सर्कल का एरिया निकाला था. बट ही इज गेटिंग 2 small pizzas of diameter 5 inches.
सो उसने एरिया निकाल के साबित किया, उसने एरिया निकाला दैट अगर मैं इस सर्कल का एरिया निकालूं पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पुटिंग पाई एज पाई, हमें पाई की वैल्यू आइदर 3.14 या 22/7 यहां यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट इस केस में भी पाई की वैल्यू पाई ही है, उधर भी पाई की वैल्यू पाई ही ले लेंगे, तो पाई कांस्टेंट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। हम सिर्फ रेडियस के स्क्वायर की हेल्प से ही आइडिया लगा लेंगे। तो रेडियस विल बी 9/2, रेडियस विल बी 9/2, सो एरिया विल बी 9/2 का स्क्वायर 81/4 पाई। तो उसने एक्चुअल में जो पिज्जा ऑर्डर किया था उसका एरिया कितना खाना था उसने 81/4 पाई, बट ही इज गेटिंग 2 small pizzas of 5 centimeter or 5 inches diameter. So radius will be 5/2, so 2 into pi r square, where pi is pi and radius is 5/2 square. 5/2 square will be 25/4, into 2 करेंगे तो 25/2, तो 25/2 pi. So 81/4 will roughly equal to 20.25 pi, but he is getting 25/2, that means 12.5 pi. So in this way he proved that I am not getting an inch extra for free, I am actually at loss after getting 2 pizzas. That's why he wrote that even if he gave 3 pizzas I would still be at loss. किस तरह से आप 5 इंचेस साइज वाले 3 पिज्जास भी दे देते, 2 के बजाय एक और दे देते, 3 पिज्जास भी दे देते, तब भी मैं लॉस पे होता। कैसे लॉस पे होता? अगर 2 पिज्जास 12.5 बन रहे हैं तो 3 पिज्जास आपके 18.75 बनते, जो कि 20.25 जो एक्चुअल उसने ऑर्डर किया था उससे अभी भी कम है। सो दैट्स व्हाई द ऑनर गेव हिम 4 पिज्जास के जान छूटे हमारी। तो यहां से हमें यह क्लियर हो रहा है कि जो सर्कल का एरिया होता है, जो सर्कल का एरिया होता है वो कभी भी रेडियस पर नहीं डिपेंडेंट होता। सर्कल का एरिया डिपेंडेंट होता है, जैसे उसके फॉर्मूला से भी पता लगता है, वो सर्कल के एरिया के सर्कल का एरिया रेडियस के स्क्वायर के पैरेलल होता है। तो अगर आपका रेडियस मान लीजिए 2 पिज्जाज हैं, इन दोनों पिज्जाज को छोड़िए, मान लीजिए 2 पिज्जाज हैं जिनका रेडियस या फिर डायमीटर 2:3 में है, अगर उनका रेडियस 2:3 में है तो उनका एरिया 4:9 में होगा, एरिया 4:9 में होगा। तो अगर आपके 2 पिज्जाज उनका रेडियस 2:3 में है तो आप 2 और 3 नहीं खा रहे, आप 4 और 9 खा रहे हैं, हमें खाने के लिए उसका एरिया मिल रहा है। इसी तरह से इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है। द क्वेश्चन इज अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स। एक पाइप है वो किसी टैंक को 40 मिनट्स में, अकेली उस टैंक को 40 मिनट्स में खाली कर रही है। अ सेकंड पाइप विद डायमीटर ट्वाइस एज मच एज द ओरिजिनल वन ऑफ द फर्स्ट इज आल्सो अटैच्ड विद द टैंक टू एम्प्टी इट, इन व्हाट टाइम कैन बोथ द पाइप्स टुगेदर एम्प्टी द टैंक। एग्जामिनर कह रहा है कि एक टैंक को खाली करने वाली पाइप 40 मिनट ले रही है टू एम्प्टी द टैंक, और उसी टैंक में एक और पाइप अटैच हुई है जिसका डायमीटर पहली से डबल है। तो डायमीटर, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो डायमीटर की जगह आप रेडियस भी कह सकते हैं। रेडियस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड पाइप इज इन द रेशियो 1:2। लेकिन जो टैंक को पाइप अटैच की है जिसमें से पानी बाहर निकलेगा, ड्रेन होगा, वो पानी क्या रेडियस में से निकलेगा? नहीं, पानी हमेशा निकलेगा उसके एरिया से। जितना पाइप का मुंह बड़ा होगा उतना ही ज्यादा पानी निकलेगा। तो मुंह बेसिकली क्या है, पाइप का मुंह क्या है? बेसिकली एरिया। तो अगर रेडियस आपका 1:2 में है तो एरिया आपका 1:4 में होगा। तो दोनों पाइप्स, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, उनका एरिया 1:4 में है। लेकिन यहां क्वेश्चन में टाइम की बात हो रही है, तो अगर जिस पाइप का एरिया कम है वो ज्यादा, मतलब उसमें से थोड़ा धीरे पानी निकलेगा तो ज्यादा समय लेगी, और जिस पाइप का एरिया ज्यादा है, मुंह का एरिया ज्यादा है, उसका मुंह ज्यादा खुला है तो ज्यादा पानी एक बार में निकलेगा तो उसका समय कम होगा। तो एरिया कम तो समय ज्यादा, एरिया ज्यादा तो समय कम लगेगा। तो बच्चे आपका टाइम क्या आ जाएगा? ऑपोजिट रेशियो में 4:1। 4:1 का मतलब इसका टाइम आपको 40 मिनट दिया हुआ है तो इसका टाइम डेफिनेटली 10 मिनट होगा। तो आपके सामने 2 पाइप्स हैं। पहली पाइप टैंक को 40 मिनट में खाली कर रही है, दूसरी पाइप उसी टैंक को 10 मिनट में खाली कर रही है। बस ये 10 मिनट निकालने के लिए वो हमें सारा ट्वीट समझना पड़ा कि जो
एरिया मतलब जो सर्कल का एरिया होता है, एरिया में से जो चीज निकल रही होती है वो रेडियस पर कभी डिपेंडेंट नहीं होगी, वो रेडियस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो यहां डायमीटर ट्वाइस लिखा हुआ है, तो डायमीटर मतलब रेडियस, वो रेडियस ट्वाइस है तो 1:2, तो एरिया आपका 1:4 बन जाएगा। बिकॉज पाई इधर है, पाई इधर है, पाई तो कैंसिल हो गया, सीधा आर स्क्वायर देखिए 1:4। तो अगर आपका एरिया 1:4 में, तो आपका टाइम 4:1 में होगा। तो पहली पाइप 40 मिनट ले रही है, क्वेश्चन में गिवन है, दूसरी पाइप विल टेक 10 मिनट्स ओनली। अगर 4 यूनिट इज इक्वल टू 40 minutes, then 1 unit will definitely be equal to 10 minutes. तो पहली पाइप 40 minutes, दूसरी पाइप is taking 10 minutes. So in what time will they together empty the tank? So टैंक की कैपेसिटी विल बी 40 और 10 का एलसीएम 40 लीटर्स। 40 लीटर्स तो एफिशिएंसी 40 मिनट्स में 40 लीटर खाली हुआ तो 1 यूनिट, 10 मिनट्स में 40 लीटर खाली हुआ तो 4 यूनिट्स। तो इन व्हाट टाइम विल दे टुगेदर एम्प्टी द टैंक? तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी 5 लीटर्स आर बीइंग एम्प्टीड इन अ मिनट। सो 40 मिनट्स के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 के हिसाब से 8 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा fourth option, 8 minutes. So this is the question. This question is not of mensuration. This question is of pipes and system, which is a part of time and work chapter. लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर जो कह रहा है कि एक पाइप तो टैंक को खाली कर रही है 40 मिनट में, दूसरी पाइप भी टैंक के साथ अटैच की गई है, विच इज एम्प्टिंग द टैंक, बट उसका डायमीटर जो है वो पहले से डबल है। तो डायमीटर डबल मतलब सिमिलरली रेडियस डबल है, बिकॉज डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर 1 से 2 है, 1:2 है, तो रेडियस भी 1:2 हो गया। लेकिन दूसरी पाइप का रेडियस डबल है, लेकिन पानी बाहर निकलेगा एरिया से। पानी एरिया से बाहर निकलेगा तो एरिया इज बेसिकली पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों तरफ कैंसिल है तो आर स्क्वायर। तो एरिया आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो एरिया आपका 1 और 4 की रेशियो में है, तो टाइम डेफिनेटली 4:1 होगा। 4 की वैल्यू 40 मिनट्स, 1 की वैल्यू 10 मिनट्स। तो पहली पाइप तो 40 मिनट्स में खाली कर रही थी, दूसरी 10 मिनट्स में खाली करिए, तो एक साथ दे विल टेक 8 मिनट्स टू एम्प्टी द टैंक। तो ये आपका क्वेश्चन था। ये अपने आप में पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन था। ट्विटर में जो एक वायरल ट्वीट हुआ था जो हमने डिस्कस किया, उसमें एक अलग क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अगले समय में हम डिस्कस करते जाएंगे। ट्वीट्स काफी अच्छे वायरल होते हैं, उनमें जो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कोई केस आएगा, कोई सिनेरियो आएगा, उन्हें डिस्कस करते जाएंगे। सी सेट में और भी एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, वो क्वेश्चंस डेली हमारा जो ये 5 बजे सी सेट का सेशन है इसमें चलता जाएगा। अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।